एंडी वॉरहॉल का एक कोट था कि दिस इज आर्ट द बट द इवेंचुअल ग्रेटेस्ट आर्ट इज मेकिंग मनी. जो मेरा पैशन है, व्हाट इफ आई वेक अप वन डे एंड इट्स नॉट देयर, पीपल इन माय डीएम्स गो फ्रॉम हाय 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 टू यू, लाइक कि तू मेरे को रिप्लाई नहीं करेगा. क्योंकि उसने एक लाइन बोली कि इवेंचुअली एवरी जॉब इज अ जॉब ऑफ अ सेल्समैन. दुनिया में कोई भी जॉब ले लो, आपको सेल्समैन के जैसे अपने आप को बेचना है. पीपल लाइक टू बिलीव व्हेन अ कंपनी बिकम्स सक्सेसफुल इट गेट्स इजी. इट नेवर गेट्स इजी. इट Yeah. वोंट. Any guest ever asked for like money or something? I don't think I'm the most famous creator on Chalchitra Talks. There is Hindal, there is Vani, there is Disha. Yeah. एक साइड को लगता है कि आपको एक दिन में भूल गए, बट देन ये सिक्योर साइड ऑफ यू विल बी लाइक वेट अ मिनट, इजंट दिस नाइसर. मैं कुछ चाहता हूँ कॉस्मिक इवेंट हो जब हम सारे साथ में मरे एंड बस मैं बच जाऊँ, बाकी सब मर जाए. एंड फिर लास्ट ऑफ अस हो. आई लॉस्ट माई थिंग फॉर डायरेक्शन, आई लॉस्ट माई मोजो फॉर डायरेक्शन. But then I started directing again and I realized it never went away. अरे वो जो CD चलती है ना सो द टाइम, 50 biggest mistakes of your life. The real goal is not to survive. Hell, anyone can do it. The goal is to survive as yourself undiminished. Introversion can make you lazy. आपको मिल गई, आपकी रील मिल गई. नहीं. ये So बात कट के जाएगा. What say what? Hello guys, welcome to another podcast. I know it's been some time, but we are back, and this time we have Vaibhav Munjal, founder of Chalchitra Talks, content creator as well as a filmmaker. I hope you like this discussion and you find something fruitful because we had a really good time. You know, from talking about YouTube, creating content, having confidence in yourself, about legacy and much more. If you don't know about Chalchitra Talks, I'll put the link in the description. Definitely check out their channel. They are an amazing recommendation platform from movies, TV shows, books and whatnot. The audio version of the podcast is available on Spotify. So without any delay, let's get into the podcast. पहले मेरे को बताइए माइक कौन सा है यार आपका? ये 5 fine का है शायद. How much is it for? It looks very fancy. 3000. Fuck, it's Yeah. nice. मेरे वाले में तो ऐसे लाइट्स नहीं है, मेरा भी 3000 का है. I was actually looking किसी और के लिए. You know Suchin, right? From Film Companion. Yeah. So he wanted one. So I was looking and I found this. I'm like, when buy this, and I also bought it. अरे are you guys friends? Yeah. सचिन को मेरा हाय बोलना. Sure. So first of all, thank you, Vaibhav, for doing this. Am I pronouncing it right? Vaibhav Munjal. Yes, All good, Munjal. right? Yes. Munjal. Great. So thank you for doing this. Welcome. You are a filmmaker, founder of Chalchitra Talks. You are a content creator. Am I missing anything? नहीं, ऐसे बहुत सारे बैड जोक्स है, but हाँ, this is yeah. Crack कर दो. ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि जब when they become famous, a father, a husband, but I'm neither a father nor a husband, so yeah. कोई नहीं. So this podcast is basically, you know, to talk about people who have created a career out of their passion, which is films, you know, particularly. And you with Chalchitra have done that. So that's amazing. I should say thank you for, you know, creating something which the, you know, a whole community really enjoys and likes and find it, you know, meaningful. So thank you for that. And I just hope, you know, people listening to this, they can, you know, take advice, take inspiration. Sometimes they don't even know where to start from. So maybe listening to your story, they can somewhere relate or, you know, find a Yeah. solution to where to begin. So Can I that's the speak goal. both in Hindi and English? Yes. ठीक है, बिकॉज मेरे को दोनों ही अच्छे से नहीं आती, सो आई ऑलवेज. So you are in Jaipur, right? Right now, or So I kind of like to have a mystery around where I stay, because Okay. the moment you say you are not in Bombay, people take you less seriously, and half of the Oh. times I'm in Bombay only. So yeah, I don't like to reveal the Jaipur part like as often. But yes, I have a setup in Jaipur. Currently I am in Jaipur, but like I am always shuffling between Jaipur and Bombay. okay. So It's the a very studio is in industry Jaipur, thing. right? Okay. Yeah, okay. but like again, like I don't like to reveal that, like, because I can always say I have a thing in Bombay also, which I have, like not a studio per se, but it's just a very industry related thing. उनको लगता है कि they are not a part of the game. थोड़ा elitism आ जाता है लोगों में, so I Is don't it like regarding to. your filmmaking work or Chalchitra? No, in regard to entertainment industry. Okay. So the whole notion that you need to be in Bombay throughout to do stuff, like I agree with it, and I also am in Bombay a lot, but you can also not be in Bombay and do great stuff. But अगर लोगों को ये हो गया कि ओ ये तो बॉम्बे नहीं रहता,
they subconsciously does something to them. Okay. राइट लाइक जैसे वो होता है ना Interesting. सोशल नेटवर्क में कि उसको शॉन पाकर बोलता रहता है यू हैव टू यू हैव टू यू हैव टू Yeah. कम टू कैलिफोर्निया. इट्स लाइक दैट देयर आर प्लेसेस वेयर पीपल नीड टू एसोसिएट योरसेल्फ, पीपल नीड टू बी एबल टू एसोसिएट you with those places, and hence I kind of like to be very fluid about it, because the idea is I can be anywhere at any time, right? Let's say अगर आप बोलते हैं एंड मान लो कुछ हमें कुछ बहुत ग्रेट करना होता है कि वैभव कैन वी मीट टुनाइट, सो बॉम्बे में ऐसा होता है कि आई एम ऑलवेज ऑन द गो कि इफ Okay. देयर इज समथिंग हैपनिंग. जैसे अभी फिल्म स्क्रीनिंग हुई थी एंड आई वाजंट इन बॉम्बे, देन आई गॉट अ इनवाइट फॉर इट. कुछ पेड नहीं था, कुछ नहीं था, बट आई जस्ट बुक माई टिकट्स टू बॉम्बे the same day for the next like screening, and I literally went to the जहाँ पे वो screening थी, मैं airport से direct वहाँ screening के लिए चला गया. I like doing these things. Yeah, so that कि the proximity to Bombay and all these places is lesser. So why I was asking about your growing up years first, just to know, do you think about it, reflect about it, कि यार there were seeds about where I'm going, or it was very, disconnected up to what you are doing today? Growing up years, yeah. So my therapist also wants me to think a lot about my growing up years, but yeah, like I do reflect on my growing up years a lot. I'm a very nostalgic person, and I do try to think a lot about where I come from and all those past memories. But yeah, this all happened in college, like filmmaking side of things. It wasn't there before that. Usse pehle I was doing engineering and like computer science, like you took the science wala branch and everything. Yeah. But तब तक patterns नहीं आए थे. Photography came in 11th standard, then filmmaking came in, then Bombay came in, then my own production house came in. Chalchitra came in very late, but Okay. Chalchitra became a thing which kind of gave me some slight fame and success. Okay. More as compared to the other things I had done until then. So what was your relationship with movies back then? Movies, I used to watch a lot of movies, even in college में मैंने बहुत movies देखना चालू की, because I realized कि बॉम्बे रहना है तो आपको आना चाहिए game. It's their language. Okay. So out of fear of missing out, I started watching a lot of movies so that I don't look stupid in parties, because I once looked very stupid in a party. एंड मेरा मजाक उड़ गया था, किसी एक एक्टर का नाम बोला था, मेरे को नहीं पता था कौन है. आई रिटन अबाउट दिस ऑन राहुल देसाई's blog once, and then I started watching a lot of movies, and then I started enjoying it, and filmmaking was something I was always very interested in. So दोनों का अच्छा मिक्स था. In like pre Chalchitra, I was just into direction, and I was Okay. just directing. So post Chalchitra, इसमें भी मैनेजरियल काम बढ़ गया, एंटरप्रेन्योरशिप का काम बढ़ गया. But like I am always someone who is always creating, always managing, always directing, running a company. So it's now a bag of a lot of things. So कभी कोई रेफरेंस पॉइंट था फैमिली रिलेटिव्स में कभी जो ऐसा कुछ फील्ड में हो? My brother is in he's an entrepreneur. He is also doing very great. So that gave me it made my life very easier, because he was the first to break out of the whole chain of engineers and doctors. So उसकी वजह से मेरे लिए easy हो गया था, because he fought the first fight. Okay. When things got a little bloody, it was during my brother trying to say I'll start something on my own. But then he became very, very, very big, and that made my life very easy. Okay. So I'm guessing there was some friction with the family regarding getting into this field. No, like I said, because my brother made my life easier, and by then it was already proven, hey, it's Okay. possible. So when my chance came in, there was not like a lot of friction. So I would say, you have your short films on YouTube. You created Chalchitra through YouTube. So how would you define YouTube for yourself? YouTube is that 24/7 film school which basically breaks all boundaries. It's like that final stop for you to be able to be completely free. So if you are on YouTube, and if you know how to use it well, you don't need a film degree, you don't need to go to a film school, you don't need to go to a film festival, you don't need to go to production houses, you don't need to go to distributors. आपको जो करना है वहाँ कर सकते हो. Yeah. चाहे आप दिमाग में कुछ भी लेबल दे लो खुद को कि मैं तो ऐसा फिल्म मेकर हूँ, मैं इतना इंडी हूँ. You use YouTube well, and it will make your life very easy. So I've seen the videos. You have talked about Chalchitra's journey and all of that. But like I think you talked about when you first started. आप जो movies देखते थे, you should share it.
and you started making videos about that. But when did it become something, yes, this is, I like doing this, or not just I just started something, let's see where it goes? देयर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग पॉल ग्राम सेज कि उससे किसी ने पूछा था व्हेन डू यू रियलाइज समथिंग बिकम्स अ स्टार्टअप कि इट्स योर मेन थिंग एंड देन ही सेज दिस थिंग एक स्टैनफोर्ड में उनकी स्पीच है उसमें उन्होंने बोला था यू वुड नो बिकॉज देन देयर विल कम अ टाइम कि जो आपकी साइड गिग है आप उस पर मेन चीज़ से ज़्यादा ध्यान दे रहे हो and that is when Yeah. it becomes your main thing. So I was doing my direction work and everything and then एक दिन ऐसा आया होगा जिस दिन मैंने चलचित्र पूरे दिन बैठ के चलचित्र किया. That is the day you realize कि okay it is something which needs to be given the respect it deserves and of a startup or a company or a business or whatever. So it happens अपने आप. So was there any time doubt that are you doing it because it's working for you, or are you doing it because the other things are not working, or or something you just feel so passionate about that you let other things go and just focus on this? मतलब वो तो हर आधे घंटे में आता है. आप यहाँ आने से पहले मैं कॉफ़ी बना रहा था तब भी आया था बट वो तो बड़ा ऐसे होता है. मतलब वो तो दोस्ती करके रखनी होती है अपने माइंड के साथ, फिर वो डाउट्स कम हो जाते हैं. एंड डाउट्स और तब कम होते हैं व्हेन यू काइंड ऑफ थिंक ऑफ समथिंग एंड इट वर्क्स एंड यू रियलाइज कि हे आई एम गुड एट इट. लाइक इन चलचित्र व्हेन आई थिंक ऑफ अ स्ट्रैटेजी इन रिगार्ड टू मनी और गेटिंग अ गेस्ट, और व्हेन आई मेक अ स्टोरी टेलिंग हैवी वीडियो एंड आई लाइक हे इट वर्क, देन डाउट चला जाता है. फिर आप कुछ टाइम तक वो नहीं करोगे तो डाउट वापस आ जाता है. सो यू कैन लाइक पुट द डाउट एट बे इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग, कॉन्स्टेंटली कीपिंग द मोमेंटम. तो वो डाउट एक लेवल से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता. आप एक साल तक कुछ भी नहीं बनाओ, एक चीज़ रेपिटेटिव करते रहो, डाउट बहुत बड़ा बन जाएगा. So I just have to tell you this. Just hear me out. So I'm not a big fan of your content. Not because it's not good or Nice. something. I really like it. आपको मिल गई, आपकी रील मिल गई. नहीं नहीं. ये So पार्ट कट के जाएगा. My problem with your content is it gives me anxiety, because I already have an anxiety that I'll never able to watch everything, and then watching a video is like, these are the must watch things, and when I'll finish this and when I'll get to this. So I think the most enjoyable is just when I just let it go, like the Kullu episode, just let go, just hear what they have to say, and how they talk about what they like. And I don't know I'll ever get to that, but it's just fun to listen to people what they recommend and everything. Just want to say your college work is amazing. I hate it हाँ, because of the मतलब- anxiety part. या तो मतलब मैं तो ले ही रहा हूँ थेरेपी, आप ले रहे हो? ले रहे हो अभी जेन्युइनली? तक तो नहीं. अभी अरे तक तो- डूड, बहुत माय फर्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ दिस एपिसोड, टेक थेरेपी. लाइक काफ़ी हेल्प करता है. एंड हाँ यार, मतलब हमने काफ़ी काम किया है, ये हमें पहले भी लोग बोलते थे. पहले हमारे टाइटल्स में होता था 81 रिकमेंडेशंस 9, तो फिर हमने बस उसका टाइटल चेंज कर दिया. अब बस गेस्ट का नाम डालते हैं, इन कन्वर्सेशन विद डालते हैं. एंड कभी कभी मैं ही चैनल पे जो चीज़ें रिकमेंड होती है बहुत टाइम तक नहीं देखता हूँ. सो आई इन जनरल वॉच वेरी लेस मूवीज़ नाउ. आई वॉच अ लॉट ऑफ टीवी शो. सो आई हैव बिकम वेरी चिल अबाउट दीज थिंग्स. वो आपको अपनी पेस मिल जाएगी. बट हैविंग सेड दैट, ये ना लेक्स फ्रीडमैन के साथ भी हुआ था. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्रिएटर प्रॉब्लम टू हैव. लाइक इफ दिस इज द रीजन व्हाई यू डोंट लाइक माय कंटेंट, इट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम टू हैव. मैं अगर कोई ये सुन रहा है और किसी को लगे कि, क्योंकि लेक्स फ्रीडमैन ने एक बार बोला था कि अ लॉट ऑफ यू हैव बीन कमेंटिंग एंड सेइंग आई एम क्रिएटिंग अ लॉट, एंड देन ही सेज लाइक बट आई एम सॉरी, मतलब आप स्लो स्पीड से देख लो, मेरा भी लाइफ का बढ़िया फेस चल रहा है, मैं स्लो नहीं हो सकता. सो आप धीरे देख लो, क्योंकि आप इसकी वजह से कभी अपनी स्पीड कम नहीं कर सकते. आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हो जिससे कि लोग ओवरवेल्म ना हो, क्वेश्चन जैसे ना हो. सो इट्स अ लॉट मोर कन्वर्सेशनल नाउ, राइट? बट यू कांट लाइक मेक श्योर कि यार सामने वाला ओवरवेल्म फील ना करे. दैट इज समथिंग यू won't be able to do completely. So ये मैंने जब लेक्स फ्रीडमैन को बोलते हुए सुना था ना, मैं काफ़ी चिल हो गया कि अच्छा, जब आप बहुत बना रहे हो तो जो रोगन रोज़ का एक पॉडकास्ट बनाता है, एंड आप बोलोगे यार रोज़ के 3 घंटे तो मैं लाइफ के इसी को दे रहा हूँ, बच्चे ही मैं 21 घंटे का गेम खेल रहा हूँ. बट इट डजंट मीन यू नीड टू स्लो डाउन. मतलब ही नीड्स टू स्लो डाउन एज अ क्रिएटर. तो क्योंकि एक फेज आएगा व्हेन यू विल बी लुकिंग फॉर दिस लाइक पैशन फॉर बीइंग एबल टू क्रिएट लाइक दिस, और फिर आपको याद आई शिट यार मैं तब स्लो हो गया था. सो कभी किसी के कहने से मेरे को नहीं लगता है कि वो स्पीड धीरे करनी चाहिए या कि बहुत सारी रिकमेंडेशंस हो गई. आप उनकी लाइफ ईजी कर सकते हो. कि मैं आपको, जैसे आप हमारा इंस्टाग्राम देखो, पिछले 2 महीने में हम बहुत सारी चीज़ें जो आज तक चैनल्स पर रिकमेंड की, हम लिस्ट के फॉर्म में इंस्टा पे दे रहे हैं, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है. यू मेक देम देयर लाइफ ईजियर, यू गिव देम कंटेंट इन अ मच मोर क्यूरेटेड वे. बट डज इट मीन यू शुड लाइक स्लो डाउन द गियर? होगा कुछ लाइफ में एक दिन जब आपकी गियर अपने आप स्लो हो जाएगी.
But like until then I don't think कि that's required. I think it's much easy to digest कि top 3 देख लो जबकि top 81 हाँ, so we don't do the 81 thing. We used to do it in 2020 or Yeah. 2021 last. We don't. It's very conversational now. And I've become very choosy of the guests. Like, I do guest episodes with because I now can more or less afford to have a lot of guests जो मेरे को चाहिए. So, Yeah. तो वो easy हो जाता है आपके लिए एक टाइम के बाद कि अब मैं करूँगा तो ऐसे ही करूँगा जिसमें मेरे को genuinely interest है. So, you know, I relate to you in some sense because I also come with a similar background of filmmaking. So, I wanted to ask you anytime, do you get doubts about, again, coming to the question, right? That do you think creating your content, you feel, यार मैं तो आसान काम कर रहा हूँ, and not just कि लोग ऐसा बोलेंगे कि खुद लगता है यार एक फिल्म बनाना अलग बात होती है, एक वीडियो बनाना अलग बात होती है. Do you get those doubts, something like that? नहीं. I am doing a lot there to make sure now. I think Andy Warhol का एक quote था कि this is art, but the eventual greatest art is making money. And जब when you learn how to make money, पता है आजकल मेरा सबसे बड़ा addiction क्या है? मोनोपली खेलता हूँ मैं रोज सोने से पहले. फ़ोन में एक ऐप 500 रुपये की ऐप आई थी, मैंने खरीदी थी. अभी चैनल बड़ा हो रहा है, लॉट ऑफ पीपल अप्रोच मी. सो माई होल आइडिया इज़ कि ओके नाउ आई हैव समथिंग विच इज़ रियली रियली ग्रेट एंड पीपल रियली like to associate with us. How do I like make it into something कि जिससे कि मैं financially sustainable हो जाऊँ, मेरी टीम हो जाए, मतलब इतना हो जाए कि 2 बार सोचना ना पड़े पेट्रोल डलवाने से पहले, राइट? कि इतना आप लाइक वहाँ पहुँच जाओ. सो दिस इज़ वेयर आई एम लाइक गो एट इन माई लाइफ राइट नाउ. वेयर होता क्या है ना, लोग ना बहुत घबरा जाते हैं कमर्शियल पार्ट ऑफ थिंग्स से कि नहीं हम तो आर्टिस्ट है, जैसी पैसे की बात होगी कोई और करेगा. ये मेरी भी बहुत बड़ी वीकनेस होती है. वंस यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग द मनी वर्क इन इट ना, इट बिकम्स लाइक आप एक टाइम तक ही इग्नोर कर सकते हो पैसे वाली चीज़, ऐसा फिल्म मेकर्स भी करते हैं. इट्स इन दैट वे दोनों ना पैरेलल लाइंस हैं. इफ़ यू आर मेकिंग अ फिल्म और इफ़ यू आर रनिंग अ यूट्यूब चैनल, लेट्स इफ यू हैव अ ग्रेट यूट्यूब चैनल but there is no money coming in and you will have to go to people to get that money. And let's say if you have made a film, there is no money coming in and you will have to get that crowdfunding or those producers to get the money. तो लोग यहाँ तक तो काम कर लेते हैं, आगे वाला नहीं करते. और मैंने ये पिछले 1-1.5 साल में फिक्स करा मेरा, पर्टिकुलरली पिछले 1 साल में, कि ये वाला काम भी कर लेते हैं जहाँ पे आपको सेल्समैन बनना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आप क्या करते हो. And that has made my life kind of very interesting. I'm not afraid to talk money now. I don't get very overwhelmed in the sense कि अरे यार shit पैसे कैसे. मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज आई स्टार्टेड टू थिंक कि आई थिंक ऑफ समथिंग इंटरेस्टिंग एंड देन ओके उसके रिजल्ट्स आएंगे. एंड वंस यू डू इट स्मार्टली, वंस यू ब्रिंग इन ऑल द वेपनरी यू हैव, people don't mind it. You just need to be graceful about things. You just need to respect the audience. So बहुत parallel lines हैं वहाँ पे उस सेंस में. अच्छी पिक्चर बनाना, अच्छा यूट्यूब बनाना तो आजकल बहुत लोग कर लेते हैं. अगर आगे वाला पार्ट भी आपने कर लिया सो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे. कभी आपको कोई चीज़ 2 बार सोचनी ही नहीं होगी. We all know that it took a long time, you know. I would not really term it success because I feel the process is the success, not the outcome. But as you said in your video also that, you know, people are waiting for that milestone, which gives you affirmation that you are on the right track. Coming to 100K was like a big deal and took a long time, you know, to come there. So my question for that is, you know, anytime did you feel to quit anything like that, or did you feel like, yeah, am I even doing the right thing? Were there any external pressures of यार ये चल होगा कि नहीं होगा? Because I feel I'm also right now at that time where it's just dragging. तो बेसिकली आपको वैलिडेशन चाहिए कि You feel क्या like, you ये know, yeah, कि आपको वैलिडेशन चाहिए. यू वांट टू हियर द वर्ड्स कि सब सही हो जाएगा. सो आई विल टेल यू, आई विल गिव यू दोज वैलिडेटरी वर्ड्स. सब सही नहीं होगा unless and until you really work at it. Like it's not going to. मैंने आज ही कुछ ट्वीट देखा था कि people like to believe when a company becomes successful it gets easy. It never gets easy. It won't. Yeah. कल को कुछ नहीं होगा. आपके फिर स्ट्रेस लेवल्स अलग होते जाएंगे कि अलग अलग परेशानी आएंगी जो पहले नहीं थी. दैट वैलिडेशन वो कभी मिलेगी ही नहीं. मैंने भी बड़ी लेने की कोशिश की, नहीं देते लोग. वो खुद में लगे हुए हैं, उनकी खुद की परेशानियाँ चल रही हैं. सो इट विल नेवर कम कि विल इट गेट ईजी आफ्टर 100K, विल इट गेट ईजी आफ्टर 180K वेयर आई एम एट राइट नाउ, विल इट गेट ईजी आफ्टर 1 million. इट डजंट. इट नेवर गेट्स ईजी. And you basically need to get okay with the idea that people might be indifferent to your work, that they wake up. Again, something I learned from
वन ऑफ द मास्टर्स वर्नर हर्ज़ॉग, उनकी एक बहुत अच्छी किताब है, उसमें पढ़ा था। सबसे खतरनाक चीज़ आपको सीखनी होती है इंडिफरेंस, कि लोग उठते हैं, आप उनको कुछ भेजते हो, वो कभी रिप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपने ये झेल लिया ना, आप मचा दोगे लाइफ में। सो अगर आप ये वाला पार्ट सहन कर गए कि शुड आई कीप डूइंग दिस और नॉट, और कोई भाव ही नहीं दे रहा, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, इफ़ यू कैन हैंडल द इंडिफरेंस देन आई डोंट थिंक देयर विल बी अ लॉट दैट कैन स्टॉप यू। कि इंडिफरेंस काफ़ी चुभता है लोगों का, कि यार कि तेरे को गुस्से में कुछ बोल देता, वीडियो पसंद नहीं आया तो तू रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। दैट इज समथिंग, इंडिफरेंस इज समथिंग विच बॉदर्स पीपल अ लॉट। बट इफ यू कैन लाइक काइंड ऑफ be okay with the fact that people will be indifferent to what you're doing, and you'll find that motivation again by yourself, then you'll be cool, you'll be good. So I can't give you any validation because it won't get easy, and it's वही है कि खुद के साथ दोस्ती करके रखो, माइंड के साथ, and I think आपको अपने आप solutions मिलने लग जाएंगे. You know, one thing I really love about Chalchitra is that it's not just a YouTube channel, you have created your own community. You know, people who love books, movies, you know, recommendations, and then from that you have converted into a business. So what was that transition and how did it happen? Was it natural or you took a step in that direction? चीज़ें मोस्टली कम्युनिटी वाली नेचुरली होने लग गई, बट मनी वाला में आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि हाउ टू डू इट वेयर पीपल आर ओके विद इट। रोज़ उस पर हम काम करते हैं। फर्स्ट पीपल रियली नीड टू लाइक योर प्रोडक्ट विच इज़ द होल वाइब एंड द कम्युनिटी ऑफ चलचित्र टॉक्स। देन इफ दे लाइक द प्रोडक्ट देन वाई वुड दे पे यू। दुनिया में इतनी कम्युनिटीज़ है, चलचित्र को क्यों पे करना। सो यू नीड टू फाइंड कि व्हाट्स सो यूनिक अबाउट यू। वो 4-5 चीज़ों का जब मैच सही हो जाता है उसके बाद लोगों को मतलब पीपल वांट टू बी विद यू, दे वांट टू लाइक एसोसिएट देमसेल्व्स विद यू। उस रिगार्ड में मतलब रोज़ काम करते हैं हम, एंड इट हैज़ बीन अ लॉट ऑफ फन। सारी चीज़ें नेचुरली हुई इन रिगार्ड टू द कम्युनिटी बिल्डिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज वी स्टक टू व्हाट वी ऑलवेज वांटेड। मनी वाला आपको ही दिमाग लगाना पड़ता है, कभी कभी हिट्स एंड मिसेस होंगे, बट लकीली अभी तक हमें समझ आ रहा है कि कैसे करना है। Like as you said before, right, you were not the kind of guy who would organically do it. You train yourself to be कि भाई पैसे पे भी ध्यान देना है। हाँ, सो बेसिकली होता क्या है कि ये मैं एक बंदा है जो मेरे को बड़ा पसंद है, सैम ऑल्टमैन। अब थोड़ा फेमस हो गया बिकॉज ही इज़ द क्रिएटर ऑफ ChatGPT। सैम ऑल्टमैन के लेक्चर्स मैं 10 साल पहले सुनता था, 10 तो ज़्यादा हो गए, 8-7 साल पहले सुनता था। माई ब्रदर इज ऑल्सो बिग फैन ऑफ हिम। तो उसकी स्टैनफोर्ड के चैनल पे एक सीरीज़ है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, एंड ही हैज़ अ वेरी गुड ब्लॉग पोस्ट कॉल्ड हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। सो उसमें ही सेज 10 चीज़ें बताइए, ये करो ये करो ये करो। One of the pointers is get good at sales. So once you become good at sales, क्योंकि उसने एक लाइन बोली कि eventually every job is a job of a salesman. दुनिया में कोई भी जॉब ले लो, आपको salesman के जैसे अपने आप को बेचना है। The sooner you realize, the sooner you put aside your arrogance कि I am above that, the easier it becomes for you. So I am a salesman. तो मेरे को अब शर्म नहीं है बोलने में। मैं सिर्फ फिल्म मेकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा काम है चीज़ें बेचना। तो उसमें आपको प्राइड लेनी चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। फर्स्ट यू नीड टू लाइक एक्सेप्ट द गेम यू आर इन ना। अब गेम को ही कोसते रहोगे कि यार गेम में ये दिक्कत है। मेरे को गुलशन देव भैया ने एक बार एक बहुत सही चीज़ बोली थी कि जब कोई एक्टर बनने आता है ना बॉम्बे, वो कोसते रहते हैं यार नेपोटिज्म इज़ अ प्रॉब्लम, ये है यहाँ पे ही होता है। बोले कि वो उनको सबसे गंदी चीज़ लगती है। इट्स द गेम, ये होगा, चेंज नहीं हो सकता, कुछ ऐसा नहीं होगा। तो गेम समझो, देखो क्या गेम है, फिर आप सोचो कि तुम क्या करोगे वहाँ। जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही है वो होंगी कि ये बंदा ऐसा ही कंटेंट बनाएगा, उसको अगर ऐसा बनाओगे तो ये फटेगा, ये नहीं बनाओगे तो नहीं फटेगा। सो गेम समझो, गेम को कोसो मत। सो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि गेम खेलना है। गेम खेलने के फ़ायदे बड़े हैं, इन द सेंस you get a lot of things, जिसके बाई प्रोडक्ट फेम भी है, you get success, you get like you add value to people's life वगैरह, अगर अच्छे वीडियोस बनाओगे तो don't hate the game you are playing. I'm just saying पहले गेम को एंजॉय करना सीखो। मतलब वही है कि ऐसा होता है ना, सुबह पेरेंट्स उठा दिया करते थे, हाँ मेरे को खेलने जाना है, देन आप गेम भी इंजॉय नहीं कर पा रहे, आप कोस भी रहे हो। नहीं ठीक है, समझ जाओगी मेरे को सुबह सुबह उठना है, गेम खेलने जाना है, सो हाउ डू आई स्टार्ट एंजॉइंग इट। एंड उसके बाद बड़ा मज़ा आता है कि मेरे को मतलब कोई घबराहट नहीं होती। कोई मेरे को यूट्यूबर बुलाता है या बोलता है अरे तू क्या करता है, कैसी वीडियोस बनाता है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं मेरे कि मैं ये नहीं बनाता, बट उसके अलावा आई लाइक द गेम नाउ। सो फर्स्ट व्हेन यू लाइक द गेम देन यू कैन बीट द गेम। पहले अगर दूर से कह रहे हो पता ये तो करना ही नहीं चाहिए यार, इसमें गलती है, तो तुम मतलब क्या है, मतलब यू आर जस्ट समवन हु
गॉसिप्स एंड हु डज लाइक थिंग्स की कोसने वाले काम करते हो। तो पहले एंजॉय करना चालू करो, सेल्समैन बनो, बनना पड़ेगा इवेंचुअली, आज नहीं तो कल आपको बनना पड़ेगा, एंड देन इट विल स्टार्ट बीइंग फन। So I love the line at the end of the video, which you made when it was not you're not getting 100K subscribers. अरे भाई मैं तो चैनल ही बंद कर देता अभी तक। 3 साल में सिर्फ Bro, I 90K। started my channel in Jan and channel still hasn't had 100,000 subscribers. It said, do something that 100 people love, then do something that 1 million people may like. I think that's amazing. And, so when did this, become into a mission for yourself that you need to make it bigger than just yourself? हाँ, तो मिशन इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट it came out very quickly when I tried to do something on Chalchitra, I got like very famous filmmakers and stuff and tried to tell stories with them, write stories with them. तो मैंने लास्ट एपिसोड विक्रमादित्य मोटवाने के साथ किया था, उसमें वो चला नहीं था. Then I got into a very dark space for I think 24 hours, and then I'm like खुद ही को बाहर निकालना है इससे कि ये वीडियो कैसे नहीं चला. एंड देन आई वाज लाइक कि यार मतलब और भी चीज़ें होनी चाहिए चैनल पे. सो देन विद इन अ वीक आई स्टार्टेड 10 मोर शोज. आई रीच्ड आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल. सो इट मेक्स माई लाइफ वेरी ईजी. मैं बड़ा इट्स वन ऑफ द स्मार्टेस्ट थिंग्स आई थिंक आई हैव एवर डन कि व्हेन यू डोंट वांट टू बी अ सोल फेस ऑफ एनीथिंग. जितने भी लोग मेरे को मिलते हैं ना दुनिया में, मैं सबसे पूछता हूँ खुद के नाम से क्यों चैनल रखा है. एक दिन आएगा जब बोर हो जाओगे, क्या इससे क्या किक मिल रही है आपको. When I met Samdeesh, when I meet any person, why are you doing this by your name? It's too much pressure on you. You need to kind of have something where you don't have to have that creator वाला stress all the time. So मेरे लिए वो बहुत वर्क करता है. So वहाँ पे आप बहुत secure भी होने चाहिए लाइफ में, तब आपको. Yeah. I don't think I'm the most famous creator on Chalchitra Talks. There is Hindal, there is Vani, there is Disha. And it's a great thing. You need to be very secure to reach there कि hey, I don't want to be the sole face of this, and अगर कोई और face बन रहा है, it's good. So, and in the larger scheme of things, it also helps when for you to focus on bigger things. मैं पैसा लाने पे फोकस करता हूँ, मैं स्टोरी टेलिंग पे करता हूँ, जो इवेंचुअली मैं वही चाहता हूँ. हर जना जो चलचित्र में चाहे वो कर सकता है, बट मेरे को क्रिएटर साइड ऑफ थिंग्स भी पसंद है. उसकी भी एक लेवल पे वैल्यू है, उसकी वजह से ब्रांड्स काम देते हैं, उसकी वजह से आपने मेरे को इस गेस्ट एपिसोड में बुलाया है. सो अंडरस्टैंड इट, बट खुद को आपकी क्रिएटर साइड पे चैनल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा. आई नो टफ पिल टू swallow फॉर यू ऑल्सो क्योंकि आप सोलो क्रिएटर हो अपने चैनल में, बट मेरे को ये स्कूल ऑफ थॉट पसंद आता है कि कभी भी एक जने पे ओवरली डिपेंडेंट मत रहो, चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो. Because वो एक दिन you might kind of disappoint yourself that one Yeah. day. So you'll have to fire the creator inside of you कि भाई ज़्यादा हो रहा है तो कभी कभी कर ले. सो वही है, मेरे को जब भी मन करता है क्रिएट करने का मैं करता हूँ. मैं संडेज को कभी कभी लाइव करता हूँ इंस्टा पे, मैं लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ. ब्रांड आते हैं तो मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, ये सब करता हूँ. बट द ओल्डर आई एम गेटिंग द मोर आई एम बिकमिंग ऑफ द फिलॉसफी there needs to be multiple reasons for me to do something. मैं वनीला स्टाइल में आके 3 चीज़ें रेकमेंड नहीं करता क्योंकि अब तो चलती नहीं. यूट्यूब भी चेंज हो गया, आपको रूल्स भी समझ आने चाहिए. आई डोंट डू एवरी गेस्ट एपिसोड ऑन द चैनल. आई जस्ट डू द वंस दैट आई रियली रियली वांट टू डू, एंड समटाइम्स आई डोंट इवन डू दैट. बाकी लोगों को करने दो यार, सब कुछ आप ही को क्यों खाना है. सो उससे बड़ा हेल्प मिलता है. तो मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, उससे पहले जस्ट इफ यू मे अ काउंटर आर्ग्यूमेंट टू दैट आई थिंक फॉर इट्स लाइक फाइटिंग अगेंस्ट योर नेचर बिकॉज आई एम वेरी रिजर्व्ड, आई एम वेरी introvert in that sense. So even reaching out to you, reaching out to other people, my first thought in mind is that why would they even reply, so and just thinking that. And also the next other thing is that accountability of having someone come over. It's not that will they find value in this, because I can control everything I do, but I cannot control everything the other person does. The controlling, you can call it the controlling nature or whatever. So how can one deal with that, because it amuses me that तो बहुत सारी चीज़ें जो आप डिस्कस कर रहे हो थेरेपी में सॉर्ट करने वाली हैं. जो थेरेपी में सॉर्ट करने वाली नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ. इंट्रोवर्जन वाली चीज़ ना, तो इंट्रोवर्जन को लोग बहुत बड़ी एक्सक्यूज़ बना लेते हैं जीवन में. मैंने एक बहुत अच्छा सेगमेंट किया था तन्मय घट के साथ. इंट्रोवर्जन कैन मेक यू लेजी. इंट्रोवर्जन रियली मेक्स पीपल लेजी. लाइक
मैं तो Yeah. इंट्रोवर्ट हूँ. इट्स लाइक इट बिकम्स दैट थिंग, अरे मैं तो जेमिनाई हूँ, मैं तो मतलब मैं तो मर्डर करता ही हूँ, राइट? लाइक मैं तो ये हूँ. यू गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब मेरे को लगता है एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो एन इंट्रोवर्ट, बट यू कैंट नॉट अप्रोच पीपल बिकॉज यू आर एन इंट्रोवर्ट, राइट? कि आप जितनी हो, मेरा 1 साल पूरा एक फेज था जब मेरी एनजाइटी इतनी हाई होती थी आफ्टर अप्रोचिंग पीपल, बट फिर मैं कुछ बहुत बड़े गेस्ट ले आया. जैसे अभी भी इफ एवरीथिंग गोज वेल आई हैव अ वेरी 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 बिग गेस्ट एपिसोड on 15th March. Like I have been chasing that person for 1.25 years. Wow. 1.25 years. So and I think this time it will happen. But जीवन में बहुत कुछ चल रहा होना चाहिए तो कि जिससे आप उस चीज़ की एंजाइटी ना लो. So again I'll tell you a good example of this. अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं करता तो चैनल थोड़ी बंद हो जाता आपका, आप कोई और कर लेते. So the trick is not to be too dependent on any one thing. अगर मेरे सबसे पहले मैंने ये वैभव मुंजाल द क्रिएटर से ये डिपेंडेंस हटाई. आई गॉट मोर क्रिएटर्स. अब मान लो वो तीनों बोले कि यार अभी तो हम नहीं बना रहे कंटेंट, हम बिजी हैं, तो चैनल थोड़ी बंद हो जाएगा. यू नीड टू हैव लाइक, मान लो अगर मैं गेस्ट अप्रोच करता हूँ, चलो अब मेरे पास गेस्ट खत्म हो गए तो चैनल थोड़ी बंद हो जाएगा, मैं आ जाऊँगा. हर चीज़ का सोल्यूशन होना चाहिए, कि मैकेनिज़म्स होने चाहिए कि गेस्ट एपिसोड्स चल रहे हैं, अपना क्रिएटर्स बना रहे हैं, तेरे को बनाना है तू बना. सो इंट्रोवर्जन का थोड़ा ध्यान रखना. मेरे को लगता है कि बहुत लोग ना दे कैन गेट अवे विद थिंग्स बाय सेइंग दे आर इंट्रोवर्ट्स, कि एंड इट इज़ अ वेरी, नो वन इज टेकिंग अवे द फैक्ट दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट, बट लाइक अगेन एक्सेप्ट द गेम, एक्सेप्ट हु यू आर एंड उसको अपनी स्ट्रेंथ्स बनाओ. अब जैसे रोहित शर्मा की फिजिक वाइज वो थोड़े से ज़्यादा हेल्दी है कंपेयर टू लेट्स से विराट कोहली. वो इतने मस्कुलर नहीं है, बट ही नोज द गेम कि कैसे खेलना है, और वो उसको अपनी स्ट्रेंथ्स बना ली. सो आप जैसे दिखते हो, जैसे हो, जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स बनाओ, फिर गेम खेलो. अगर वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है या आपके ट्रेट्स है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गेम नहीं खेलोगे. जस्ट बिकॉज यू आर एन इंट्रोवर्ट डजंट मीन यू वोंट हैव टू फॉलो विद मी 500 टाइम्स. यू विल हैव टू फॉलो विद. मैं तो कभी कभी ना लोगों को जान के रिप्लाई नहीं करता एक बारी में, क्योंकि पता है मैं आपको एक बहुत कूल चीज़ बताता हूँ. पीपल, जब मैं ना सेमी सक्सेसफुल आदमी हूँ, सो 2 टाइप की सक्सेस होती है. एक जो चेजेबल सक्सेस होती है, एक होती है अनचेजेबल सक्सेस होती है. अनचेजेबल मान लो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स टाइप की, वो एक्चुअली सक्सेसफुल. एक चेजेबल सक्सेस होती है जो काइंड ऑफ मान लो 2-4% मेरे पास है. ये हम में से एक था जिसने 1,80,000 का चैनल बना दिया. तो वो जब इंसान ग्रो करता है या उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ आप ओके नहीं हो या कुछ कर दिया, तो आपको बुरा लगता है, आपको जलता है. ये क्यों यार, इससे ज़्यादा तो मेरे मार्क्स आते थे, इससे बेटर फिल्म मेकर तो मैं हूँ, इससे बेटर क्वेश्चंस तो मैं पूछता हूँ, इसके लिए तो ये पिक्चर भी नहीं देखी, ये खुद को सिनेफाइल बोलता है. सो आई एम अमंग द पीपल जिनके पास चेजेबल सक्सेस है. सो इट्स ईजियर टू हेट मी. तो वहाँ पे ना आपको स्लिंग्स एंड एरोज ज़्यादा मिलते हैं, लोग आपको ज़्यादा नीचे लाने की कोशिश करेंगे. एक हो गया कि तन्मय भट्ट हो गया, मिस्टर बीस्ट हो गया, वो एक लेवल के बाद अनचेजेबल हो जाते हैं कि यार मैं इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा, कि सबको पता है. तो मतलब जो आसपास वाले हैं ना, तो वहाँ पे फिर जेलसी वाला फैक्टर आता है, लाइक अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक दोस कम इन. सो मैं कभी कभी ना लोगों को रिप्लाई इसलिए नहीं करता क्योंकि मतलब मैं ना इंस्टा पे इन जनरल लोग मेरे को अप्रोच करते हैं ना, तो इंस्टा मेरे को नहीं आता ढंग से, मतलब मेरे से होता नहीं है, मेरे को थोड़ा आलस आता है. तो एक बार वो आपको ढंग से पूछेंगे, दूसरी बार पूछेंगे, तीसरी बार पूछेंगे, चौथी बार उनकी टोन ख़राब हो जाएगी. उन लोग है तो वैभव मुंजाली ना, कौन सी बड़ी चीज़ है, हम में से ही तो एक है. बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दैट चेजेबल सक्सेस, राइट. तो उनकी ना टोन बदल जाती है, उनकी ऐसी गालियाँ निकलने लग जाती है. समटाइम्स उसने लाइक देयर इज़ अ पार्डन, मैं लाइक इसको बीप कर देना, लाइक कि एक बार मेरे को एक बंदे ने बोला कि कैन यू प्लीज़ रिकमेंड मी सम मेंटल हेल्थ रिलेटेड मूवीज़. मैंने कहा लवली, करेंगे इसको किसी से रिप्लाई. मैंने रिप्लाई नहीं किया 1 हफ्ते तक. उसका रिप्लाई तो कर दे. दैट वॉज द नेक्स्ट थिंग इज दैट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दैट चेजेबल सक्सेस. हम में से ये क्यों स्टड बन रहा है, ये इतना बड़ा आदमी हो गया. सो माई सजेशन इफ़ यू आर एवर अप्रोचिंग पीपल इज टोन अपनी ख़राब मत करो यार. मतलब ठीक है यार, मेरे को अगर इज्जत दे रहे हो अपने चैनल पे बुलाने की या गेस्ट बुलाने की, नहीं किया मैंने रिप्लाई, चलो तुम्हें सीन पे छोड़ दिया, चलो जान के मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, तुम्हारा मैसेज ही खोल के बैठा हूँ नहीं कर रहा रिप्लाई. बट डज इट गिव यू द राइट टू बी रूड, डज इट गिव यू द राइट टू चेंज योर टोन. मेरे को पता है तुम स्टीव जॉब्स के साथ तो करोगे नहीं, तो यहाँ क्यों कर रहे हो. तो वो डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए. एंड I actually practice this also, so I'm just saying it. That is why I'm able to get like very very great guests on my channel. मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को 1.25 साल लगा है उस गेस्ट को लॉक करने में जिनके साथ मेरा 15 मार्च को है. मतलब
semi ghosting is very common when you're chasing people. Very very common. Even ghosting is very common. Yeah. Because people are not thinking about you. आप अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो जब आपको लगता है कि सामने वाला आपके बारे में सोच रहे हो, वो नहीं सोच रहा. कभी कभी वो फ्री होते तो कर लेंगे कॉल, नहीं होते तो नहीं होंगे. बट आपको चेस करते रहना है, पोलाइट रहना है. Yeah. And then things happen. हाँ. Coming to, team, like how did you find people, who are now associated with you and, make a team? कुछ मेरे पेट्रन्स थे, कुछ मेरे कॉलेज जूनियर्स थे, कुछ स्कूल जूनियर्स थे. सौरभ जो हैं वो मेरे कज़न हैं. तो मतलब आप हर जगह आंखें खुली रखो. कुछ आप ऐसे पोस्ट डालते हो, आई एम लुकिंग फॉर पीपल, वहाँ से आ जाते हैं. सो इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग. जैसे वानी है, वानी के साथ मैंने कभी कॉलेज में बात नहीं की थी. शी वॉज अ जूनियर बट आई रिमेंबर सीइंग हर इन लाइब्रेरी अ लॉट. सो मैंने एक बार डाला था कि आई एम लुकिंग फॉर पीपल टू डू बुक सेक्शन ऑन चैनल. तो उनकी स्टोरी पे मेरा सीन आया था, मेरी स्टोरी पे उनका सीन आया था. तो मैंने कहा यार ये तो वही है, ये तो किताबें पढ़ती है बहुत. तो मैंने उसको कॉल कर लिया. वानी स्टिल लाइक इज एंग्री विद मी बिकॉज आई थिंक उससे एक दिन पहले वानी का बर्थडे था. सो शी थॉट आई वाज कॉलिंग हर टू विश हर. मैंने कहा मेरा तो चैनल है, आओगे क्या? सो यू काइंड ऑफ कीप योर आइज ओपन एंड यू फाइंड द पीपल. एंड आई थिंक आई हैव दैट थिंग ऑल्सो बिकॉज फिल्म मेकिंग साइड की वजह से आई नो कि पर्सनैलिटीज दैट लुक गुड ऑन कैमरा नहीं भी है तो हम बना देंगे. लाइक कि यू हैव टू मेक पीपल लाइकेबल. सो आई फोकस अ लॉट ऑन दैट क्योंकि मैंने खुद के लिए भी किया ये एक लेवल तक. इफ़ यू आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, द थिंग्स यू शुड एंड यू शुड नॉट डू सो दैट पीपल काइंड ऑफ लाइक लिसनिंग टू यू. 2-3 घंटे की स्ट्रीम कर रहे हो तो बैठ के आपकी बात सुने, उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं. बट लाइक द टेक्निकल पार्ट की हाउ डू यू कि यार उसको बुला रहे हैं वो अपना 100% क्यों दे, या I'm assuming she was working somewhere or something like that. So like how do you convert them into like be fully invested? तो and ये then भी you तो can... ड्रग है ना. आप क्विट करने का, जैसे आपने कहा ना कि आपको भी आजकल ऐसे थॉट आते हैं बट आप कर रहे हो. आज आपने मेरे को इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने मेरे साथ ये कर लिया, मैंने आपको टाइम जो सजेस्ट किया उस पर, क्योंकि ये भी ड्रग है ना. लोगों को मज़ा आता है जब ऐसी चीज़ें चलती है. इट्स अ ड्रग. It gives them a kick. It gives me a kick. And it's a very good drug to have in your life. And you basically, अगर मैं मेरे चैनल पे कुछ डालता हूँ जिस पे 40 व्यूज़ आते हैं तो उनको वो किक नहीं मिलेगी. When I started approaching people, I had already run the channel for 2 years by myself. So I knew I have a very strong community जिसको मैंने तब तक टैप इन नहीं किया था. But I knew कि मेरे लॉयल फैन बेस है. और वो जिस दिन वानी का पहला वीडियो है वो मेरे सारे वीडियो से एक दिन में ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. एक साइड को लगता है कि आपको एक दिन में भूल गए बट देन योर सिक्योर साइड ऑफ यू विल बी लाइक वेट अ मिनट, इजंट दिस नाइसर. यू कन्विंस पीपल बाय एक्चुअली एडिंग वैल्यू इन देयर लाइव्स, है ना. सो वानी ने जब ये किया होगा तो उनको भी लगा होगा कि इतने सारे लोग कमेंट करते हैं, इतने सारे आते हैं. एंड लाइक अ लॉट ऑफ टाइम पीपल हैवंट डन दिस इन देयर लाइफ. सो मेरे को तो आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन लाइक द पीपल हु हैव बीन इन चलचित्र, हु हैव बिकम ब्रांड्स नाउ, हु गेट ब्रांड डील्स. एंड लाइक जैसे हम लोगों को जब मिलती है कि मेरे को इस वीडियो में ये चाहिए, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. सो यू कन्विंस देम बाय एक्चुअली शोइंग आउटपुट कि मैं तेरे को ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, तेरे को ये फ़ायदा होगा. बिकॉज मनी इज समथिंग आई डोंट हैव, और आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी राइट. बट आपको उनको बिल्कुल वो भी नहीं है कि मैं तेरे को एक्सपोजर दूंगा. यू नीड टू गिव देम वेरी टैंजिबल थिंग्स. देख तेरे को ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा. एंड वन पावर आई हैड वाज, again it wasn't something I was starting from zero. So when I was approaching people, I was already a brand. I already had like guests like who were successful. So people knew कि बंदा तो legit है और ये जो कर रहा है ये legit है. And then it's like कि it's a cool thing. It's not like कि bro मेरे को एक आइडिया आ रहा है कि जो आप रात को बार में सोचते हो दारू पीते पीते. It wasn't that. मैं 2 साल खुद काम कर चुका था उस चैनल पे. एंड देन आई एम लाइक वेट अ मिनट, अब मैं बोर हो रहा हूँ. मैंने टीम इसलिए बड़ी की थी, मैंने आज भी याद है मैंने मेरे जर्नल में लिखा था, आई नीड टू हैव मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग अनफ अराउंड मी सो दैट व्हेन आई फील लेजी दोज मैकेनिज्म्स हेल्प मी बी सक्सेसफुल. जैसे विनायक है मेरी टीम में, वो क्रिएटिव हेड है हमारा. जब मैं ऐसे हो जाता हूँ ना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, जैसे कभी कभी कुछ शूट्स होते हैं तो मैं बोलता हूँ तू फ्रेम बना दे, तो मेरे को बता दे करना क्या, आई डू इट. बिकॉज समटाइम्स आई एम थिंकिंग अ लॉट. 4 चीज़ें चल रही हैं अभी. लिटरली यहाँ आने से पहले मैंने उससे पूछा था, ये कर लूँ क्या, बिकॉज हमारा एक शूट भी चल रहा है. सो मेरे को एक बेड में एक उठने का मेरा कुछ सीन रिकॉर्ड करना था एक वीडियो के लिए. सो कि मैं ऐसे नींद से उठा, एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड वाज अ पार्ट ऑफ द ड्रीम. एक ब्रांड वीडियो का पार्ट था. सो एंड लाइक जस्ट टेल मी व्हाट टू डू, आई वोंट बी एबल टू थिंक अ लॉट. सो ही प्लेड द रोल ऑफ द डायरेक्टर. सो यू फाइंड पीपल हु आर एज गुड एज यू एंड possibly
if possible, who are more successful than you. You find those people and let them, वो आपको घसीट के लेके जाएंगे कि भाई तू अब स्लो मत हो, देख तेरे बोलने पे आए थे. So that's beautiful. So जब mechanisms बन जाते हैं ना, जैसे अब I have to show up to the studio every day at 11 a.m. even if I have had a breakup or like I don't feel good, because others will come in. So you get better, then discipline becomes freedom, and like things like those happen. When you take things seriously, when people see the passion in your eyes, when they see कि actually कुछ output आ रहा है, they like to become a part of that thing. Moving from a YouTube channel to a website, like how did you have a model to follow, or it just happened organically? यार वेबसाइट तो है ऐसे, मतलब 2 मिनट लगते बनाने में. मैं मेरी वेबसाइट को अकम्पलिशमेंट के जैसे नहीं देखता. अ लॉट ऑफ पीपल प्रेज द वेबसाइट, बट वो ये थोड़ा एस्थेटिक सेंस वगैरह हो तो वो हो जाता है. एंड वेबसाइट पे जो हमने 1-2 मॉनिटरी चीज़ें की हैं वगैरह, इट्स लाइक टेकिंग रिस्क टाइम टू टाइम. मेरे को बड़ा पसंद है जो हमने महीने के जो पैसे देते हैं उसको वगैरह, क्योंकि ओ अच्छा इस पर ये भी होता है, ये भी होता है, फिर हम वो भी करने लग जाते. सो इट वाज जस्ट अ वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ थिंग्स. सो आई डोंट थिंक इट्स अ बिगर इनफ अकम्पलिशमेंट कि उसके बारे में कुछ अलग से बात की जाए. A big part of the channel is inviting guests who are maybe someone would consider hey इन्होंने कैसे बुला लिया. So from your side, does it I'm assuming not, but or maybe you have felt that there is this doubt कि यार ये क्यों मेरी बात सुनेंगे, या what do you think, like okay. मैं काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हूँ उस मामले में. मेरे को ये लगता है अगर ये मेरे को अभी मना कर रहे हैं ना, तो इनका लॉस होगा. अगेन ये थोड़ा एरोगेंट लग सकता है. लेट मी सिंप्लीफाई दिस. आई नीड टू पिच इट टू देम इन अ वे जिससे इनको समझ आए कि अगर अब ये मना करेंगे, दे माइट मिस आउट ऑन समथिंग. सिमिलरली जैसे ना, जब मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर से पहले कोई गेस्ट एपिसोड्स करने के लिए बुलाता था तो मैं ये सब बताता नहीं था, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा मेरे को मचाने दो फिर मैं ऐसे आके बातें करूँ. बट जो लोग मेरे को आइडेंटिफाई कर चुके थे ना कि आपके साथ हमें गेस्ट एपिसोड करना, मैं सबको बोलता था तो मेरे को 1 लाख के बाद वापस अप्रोच करना, मैं आ जाऊँगा. देन देयर वाज अ गाय, स्पॉटलाइट इंडिया करके एक पॉडकास्ट चलाता है, ही अप्रोच मी एट अ टाइम व्हेन आई वाज हैविंग 1 लाख. वाला क्रॉस होने वाला था. आई एम लाइक तू मेरे स्टूडियो आ जा, आई नो यूल हैव टू ट्रैवल सिटीज़, आ जा, लेट्स डू समथिंग, बिकॉज आई एम क्रॉसिंग 1 लाख, सो यूल बी द फर्स्ट पर्सन आई विल बी टेलिंग माई स्टोरी टू. And it's a good story. Since then I've been doing a lot of episodes, so I have a lot of respect for those people also who approach nicely, who kind of are very humble in at least their approach, who are patient, who practice what they are preaching. कि कहते हैं कि अरे I'm a big fan, ये वो चलो तो वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना. तो 2 दिन में गाली तो नहीं बकेंगे ना. तो वो वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि एंड देन यू फाइंड दोज पीपल. तो मेरे को बड़ा, जैसे डिसकॉन्टेंट करके एक चैनल है, उन्होंने मेरे को इतना इनिशियली पॉडकास्ट पे बुला लिया था जब मैं आई वॉज नथिंग. तो मेरे को बड़े पसंद है, वो खुद बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, आदित्य और भारत एंड हिमांशु ऑल्सो. सो यू ऑलवेज आइडेंटिफाई द पीपल कि इसने मेरे को डिस्कवर किया ये तो ये स्मार्ट तो हो गई. मैं ब्रांड्स को भी बोलता हूँ कि यार मैं तो मेरा 200% दूंगा, बट आपने मेरे को डिस्कवर किया है, आप में भी कुछ तो बात है कि आप सही जगह आए हो. और ये मैं बता रहा हूँ, ये सुपरफिशियल नहीं है. इसके लिए आपको एक्चुअली थोड़ी नीडल टर्न करनी पड़ती है बाय लाइक डूइंग सम थिंग्स जहाँ से आपको लग रहा है कि ओके इफ आई थिंक समथिंग इट वर्क्स एंड देन दैट हैपन्स. सो मेरे को किसी गेस्ट के लिए आज तक ये डाउट नहीं आया है कि ये इतने बड़े लोग हैं, ये क्यों सुने. मतलब मेरे को दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं लगता जिसके लिए मेरे को ये थॉट आ सकता है. मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बिकॉज द वे आई स्पीक, द वे आई कैन टॉक टू देम, आई थिंक आई कैन ऑल्सो गारंटी दैट इट विल बी एन आवर दैट दे विल रिमेंबर इवन इफ आई एम द क्वेश्चनर कि जो सवाल पूछ रहा है. तो मेरे को अब बहुत प्रैक्टिस किया मैंने उस चीज़ की, और जा भी सकती है अगर मैं एरोगेंट हो जाऊँ या कम एपिसोड्स करने लग जाऊँ, बट आई एम प्रैक्टिसिंग इट अ लॉट. इट्स अ स्किल. इसको मैंने वो दिए हैं 10,000 आवर्स तो नहीं दिया, बट इसको मैंने अपना फेयर शेयर दिया. सो देयर इज़ नो वन इन द वर्ल्ड जिसके लिए मेरे को लगता है कि, तो इसलिए मैं ऐसे भेजता रहता हूँ लोगों को मैसेज. इफ़ समवन इज़ इवन लाइक एट द टॉप ऑफ देयर गेम एंड इफ आई वांट टू डू एन एपिसोड एंड आई हैव सीन इट कन्वर्ट, आई हैव सीन इट कन्वर्ट एट द बिगेस्ट लेवल्स, लाइक द पीपल जिनके मेरे को दुनिया में सबसे ज़्यादा काम पसंद है. कुछ आ चुके हैं, एक अभी आने वाले हैं, सो वो हो जाता है. Can I guess the person? Like, is it a You won't be able director? to guess. No, it's Okay. not a director. It's a YouTuber. They Okay. are YouTubers. Okay. Just about inviting people, like, are there any funny stories, or maybe someone asked like for money, like not taking names, without taking names? I approached someone, hi if you are watching, I approached someone when I had less than 200 subscribers to be one of the first guests on my channel. That person called me to meet him/her.
एंड कि अच्छा ऐसा ऐसा है, तो पूरा टाइम फ़ोन में लगे, तो उन्होंने कहा करते हैं। व्हेन आई री अप्रोच दैट पर्सन, दे आर लाइक अभी नहीं हो पाएगा, थोड़ा मेरे को भाव का है वगैरह। तो मेरे को तब भी पता था कि देखो लॉस इवेंचुअली इन्हीं का होगा अगर ये नहीं आएंगे तो। देन चैनल थोड़ा बड़ा हुआ, देन हमारे चैनल पे वरुण ग्रोवर आ गए, विश्वपति सरकार आ गए, तो लोगों को लगा फक ये क्या हो रहा है। देन दैट पर्सन सॉ मी एट अ स्क्रीनिंग वंस एंड देन लाइक ओ अब तो चैनल बड़ा हो गया ना, अच्छा 10,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए, कब करना है बता, आई विल कम। देन दैट पर्सन केम इन। ये मैंने ना सौरभ पंत से चीज़ सीखी थी कि इसको गेम के जैसे देखो, इसमें रिवेंज स्टोरीज में ढूंढना। तब आपकी नहीं थी औकात तो उन्होंने आपको सीरियसली नहीं लिया, अब आपकी औकात है तो वो आपको सीरियसली ले रहे हैं। पहले ना मैं बड़ा ऐसे पर्सनली ले जाता था, अब तो आओगे ही बेटा। मतलब देयर इज वन साइड ऑफ मी कि इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू रियलाइज मी, इफ यू आइडेंटिफाइड हु आई एम लाइक सूना। बट इवन इफ दे डिड नॉट, यू कांट टेक इट पर्सनली, एवरीवन इज बिजी, सबकी लाइफ, कोई आपके बारे में नहीं सोच। एंड आई वाज सुपर हम्बल, हमने बहुत अच्छे एपिसोड किया एंड इट हैपेंड, बट दैट पर्सन हैड सेड नो टू मी। तो मेरे को जब कोई ना भी बोलता है ना, तो मेरे को होता है कि चलो 6 महीने बाद वापस अप्रोच करेंगे, वापस करेंगे। आई लाइक डूइंग दिस थिंग कि अगर मेरे को कोई मना करता है तो मैं उनको, उनसे कोई बड़ा गेस्ट लाके उनको उसका लिंक भेज देता हूँ कि अच्छा नहीं करोगे ठीक है, आई विल गेट लाइक समवन बिगर एंड नॉट टू प्रूव इट टू यू बिकॉज आई एम ऑलवेज अप्रोचिंग पीपल। बाय द वे आई हैड दिस पर्सन ऑन द चैनल, so I like that. Again, it's a gamified thing, so you need to enjoy it and do not take it personally. Everyone is busy and everyone has a life of their own where you are not needed. Any guest ever asked for like money or something? वो भी personally नहीं लेना होता actually. Some part of the rules of the game. If you'll approach actors, they don't understand it like that easily. कि actors के लिए इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट और पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट बहुत वही है कि या तो पॉडकास्ट कर रहे हो तो या तो जो रोगन हो, और इंटरव्यू कर रहे हो तो इन द सेंस उनके लिए दे वोंट बी एबल टू डिस्टिंग, मतलब दे विल थिंक, वो हो सकता है आपको पिंक फिला के जैसे सोच लें, तो उनके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन ये होता है कि तो क्या लगता है आपको कि क्या होगा ये, लाइक ऑल दोज बेसिक क्वेश्चन जिससे कोई भी स्टार्ट करता है। सो आपको बहुत प्रूव करना पड़ेगा उनको कि यू आर डिफरेंट, इट विल बी अ लॉन्ग चेज। एक्टर्स में मेरे साथ 1-2 लोगों ने बोला था कि मेरी टीम में हमारी एक्टर है, हमारे एक्टर के लिए आपको 40,000 रुपीज़ हेयर एंड मेकअप के देने होंगे। तो एक बार उनकी टीम ने बोला था, इवेंचुअली दैट पर्सन ऑल्सो केम ऑन माई चैनल, बट यू वांट टेक इट पर्सनली बिकॉज PR का जॉब है ये बोलना, उनके मैनेजर्स का जॉब है ये बोलना। सो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कैन टेक नन ऑफ दिस पर्सनली कि तू नहीं, अनलेस एंड अनटिल दे एक्चुअली वांट यू टू फील स्मॉलर। कोई आपको जेन्युइनली छोटा फील कराने की कोशिश करे ना कि तुम नहीं हो, तो आप पर्सनली ले सकते हो, बट तब भी रिवेंज मत लो। मेरी लाइफ में मेरे को ना एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा है कि आई एम नॉट अ वेरी रिवेंज ड्रिवन पर्सन। रिवेंज मेरे को बड़ा बोरिंग लगता है कि यार इतनी इंपॉर्टेंस किसी को देनी ही नहीं लाइफ में कि उसको प्रूव करने के लिए मैं कुछ करूँगा। आज तक मैंने किसी को ही नहीं, यू नो व्हाट, बच्चों को दिखाऊँ, होता है ना पिक्चरों का प्लॉट होता है, तूने ये कि अब तू देख मैं क्या करूँगा, नहीं तो वहाँ पे मैं काफ़ी वो लगता है मेरे को ये नहीं करना है। It's weird कि you talked about, and even I've realized that what we are doing, we need to be narcissists at a moment that we believe in ourselves, but at the same time we need to be humble also. Two qualities are very different, but you need both of them to really work well. Narcissism is a strong word, but I get what you are saying. आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। Yeah. जैसे जब मैं पीटर गोल्ड को भी चैनल पे ला रहा था ना, एक दिन मैंने होप खो दी थी कि अब ये नहीं होगा, और मैंने कहा तो क्या अगर वो 2 साल तक रिप्लाई नहीं करेंगे तो क्या मैं चैनल नहीं चलाऊंगा? ठीक है, मैंने पब्लिकली बोल दिया एपिसोड 100 में वही आएंगे, बट आई नीड टू मूव ऑन। सो आई वाज रियलिस्टिक आल्सो दैट वेज कि आई विल मूव ऑन। You kind of give your best, you are humble, you know what you are doing, but आप कभी उनको ऐसे दिखा नहीं सकते कि in the sense कि मैं तेरे को खर्च करके दिखाऊंगा मैं छोड़। You need to do things extremely humbly. एक बार मेरे को एक गेस्ट ने बोला था कि मैं यार सिर्फ पेड करता हूँ, पूरा वीडियोस करता हूँ, तो मैंने कहा यार मेरे को तो लग रहा था ये हाँ बोल देंगे, ये तो गूगली क्या खेली इन्होंने कि अभी तो। फिर मैंने उनको काफ़ी सारे एपिसोड्स भेजे ऑफ गेस्ट दैट आई गॉट, तो उनका हाँ आ गया, मैं जान में फ्री हूँ कर लेते हैं। देन फिर मैंने किया नहीं था उनके साथ बिकॉज मेरे को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उन्होंने मेरे को थोड़ा ऐसा फील कराया था कि यार ये गलत बात है यार, अब आप फ्री में कर लोगे तो पहले रिसर्च कर लेते, अब एकदम से क्या हो। अगेन लाइक इट्स दैट इज़ आई थिंक वन एक्सेप्शन वेयर आई फेल्ट रियली बैड। ये मेरे को ऐसे क्यों फील करा रहे हो कि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि यार हम थोड़े मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐसे इंटेंशनली हम ऐसा क्यों फील करा रहे हो कि हम कुछ भी नहीं है। सो
लोग कभी कभी ऐसे कर देते हैं कि नहीं आई जस्ट डू ऐसे पेड वीडियोस वगैरह, तो मतलब या यू हैव टू पे मी टू गेट मी टू योर चैनल। मैंने कहा आर यू श्योर? मेरे दिमाग में पहला थॉट यही है, आर यू श्योर? क्योंकि मैं फ्री में करवा लूँगा आपसे, बट आर यू श्योर यू वांट टू प्ले दिस कार्ड? आपको नहीं करना चाहिए पहले ऐसे चेक इन, जस्ट आस्क कि क्या है वगैरह। जैसे मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ, मेरे को कोई ब्रांड मैसेज करता ना, वो बोलते कि प्लीज़ लेट अस नो व्हेन वी कैन कनेक्ट ऑन कॉल। माई फर्स्ट मैसेज टू देम इज़ इट अ पेड गिग, एंड फिर उसके बाद वो बोलते हैं बाटर है वगैरह। आई नेवर डू इट नाउ, सॉरी वी जस्ट डू पेड वीडियोस। आई एम ऑल्सो लाइक दैट, बट वो डिस्टिंक्शन करना आना चाहिए। और मान लो गलती हो भी गई तो बात कर लो उसके बाद। बट बहुत ना इक्के दुक्के केसेस हुए हैं जहाँ पे ऐसा हुआ है, बिकॉज अभी पीपल लाइक टॉक अबाउट चलचित्र इन अ गुड वे। We try to also be very nice about like the whole thing कि personally नहीं लेना वगैरह, and like everything like I said is a part of like people being busy and having their own things going on वगैरह। तो एक या दो बार होता है कि जब कोई गलत करता है। I think recently Corin and Sameer they started a new channel. They were talking about this ki because I think the general audience think that ki यार तो पैसे लेके आते होंगे या like some I think they even said that कि some deserve to get the money because their time and the value they bring to your video, but yeah most people just do it out of goodwill. Yeah, and that is how YouTube works, no? So कभी कभी एक्टर्स को ये चीज़ समझ नहीं आती, बट अब एक्टर्स को भी आने लगे हैं क्योंकि हर एक्टर का एक यूट्यूब चैनल है। सम पीपल डोंट नो हाउ दिस इज डन, राइट? कि कोलैबोरेशंस कैसे वर्क करती हैं, हाउ you can achieve unreal amount of things in this industry if you are just kind. Kindness takes you a long way in this game. You are just a nice person who likes to do nice things for people. So agenda less, वो मेरे को बड़ा सही लगता है कि कोई एजेंडा नहीं है यार। मैं तेरी इसलिए हेल्प नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर मैं एक दिन तेरे से ये हेल्प मांगूंगा और तेरे को इतनी नहीं लगाना होता। तो वहाँ पे आप, इसलिए मैं जैसे आपको थेरेपी वाली बात बोली, एक तो खुद के साथ सिंक में रहो तो आप खुद की एक तो रिस्पेक्ट करोगे, आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, आप बाकी लोगों के अच्छे से ट्रीट करोगे। एंड बिकॉज व्हेन यू विल ट्रीट अदर्स नाइसली यू विल सी कि ओके लाइक थोड़ा एनर्जी वाला सीन होता है कि यू काइंड ऑफ ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग nicer people around you. Just I'm super proud of the people I have in my vicinity, proximity, the people I can call when I am in trouble. I know they are not people जो गंदे हैं, मेरे को सब पता है कि they are very nice people at heart, but उसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है कि I won't become a person की जो दिल का अच्छा नहीं है। एंड दिल का अच्छा वाली जो चीज़ होती है, it might sound very gimmickish but like it's like it comes with small things, the acts of kindness you do where you are not expecting something in return, right? ऐसे वो जो होते हैं ना gratefulness और वो जो journals होते हैं जो blissfulness वगैरह वाले, I'm forgetting the word कि I'll do something nice for some person। अगर आप just intuitively भी कर रहे हो, चलो अगर रोज़ भी नहीं कर रहे हो, अगर कुछ ऐसा होते हुए दिख रहा है कि यार ठीक है ये कर लेते हैं, किसी को हेल्प चाहिए, then I'll do it. It just comes back, particularly because you are not expecting it to come back. Expect करोगे कि ऐसा होता है ना कि मान लो अगर मैं ऐसे 1 लाख रुपए की चैरिटी में देख के आ गया और फिर ऐसे कि भगवान देख रहे हो अगर 1 लाख रुपए चैरिटी में दिए तो जस्ट कीप नोट ऑफ इट, यू नो। कहता नहीं निकोलस तालिब का एक कोट था कि पर्सनालिटी इज एवरीथिंग दैट यू डू इन प्राइवेट, मतलब योर रियल सेल्फ इज एवरीथिंग दैट यू, चैरिटी इज एवरीथिंग दैट यू डू इन प्राइवेट, रेस्ट एवरीथिंग इज मार्केटिंग, समथिंग लाइक दिस। ये है मतलब, बट इसका मोटा मोटा क्रक्स यही है कि अगर आप उसको ऐसे इंस्टा लाइव करके दिखा रहे हो कि देखो मैं इस इंसान को पैसे दे रहा हूँ, ये करे, दिस इज ऑल मार्केटिंग। ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपने लोगों की हेल्प की जो आज तक किसी को नहीं पता है, एक्चुअल हेल्प तो वो है ना। And I like doing those things for people because people have done those things for me. So like I'm telling you, मेरे को इतने ज़्यादा स्टड लोग मिले हैं इंडस्ट्री में कि it's just like I have attracted the right kind of people in my life, and I'm very grateful for that. Are you very good with memory, or like these are the things you have like stuck to you, like the quotes and you know? मेरे को quotes के साथ fascination in general बहुत ज़्यादा है, and I have a very visual mind. So quotes is something I really 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 like. Quotes मतलब मतलब हैं like the things people say and everything. Quotes मेरे साथ like always stay with me. Do you believe in fate or destiny? पता नहीं यार ये थोड़ा अगर ऐसे कुछ इसमें कुछ एंगल देके पूछते तो पता है, ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा मैं। Like do you think कि चलचित्र होना ही था, और maybe if you go back कि जो हुआ है वो भी stars were aligned कि यार ये ऐसा हुआ था तब ऐसा हुआ था और ये मुझे मतलब predestined था कि यहाँ आना ही था, कि you think
what you decided led to this. There is a short story by Ted Chiang. It's called What's Expected of Us. So it is about free will. उसमें कॉन्सेप्ट दिखाया है कि आप कभी आपको एक डिवाइस मिलेगा और जैसे ही सोचोगे कि उसमें एक लाइट चालू करनी है वो लाइट पहले जल जाएगी, बट आप जब नहीं भी सोचोगे और आप ऐसे बिना सोचे उस लाइट को चालू करने की कोशिश करोगे तो लाइट पहले जल जाएगी. सो इट्स अ वेरी गुड टेक ऑन फ्री विल कि देयर इज़ नो फ्री विल. जो होना था वो हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार्स अलाइन हुए. सो फ्री विल नहीं है आपके पास. अगर आपको लग रहा है कि अब आप अगला क्वेश्चन मेरे से इंटरेस्टिंग पूछोगे और वह अच्छा रिस्पॉन्स देगा, देयर इज़ नो फ्री विल. सो मेरे को वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है. सो इसका मेरे पास जेनुअनली अच्छा आंसर नहीं है. मतलब आई जस्ट हैव दिस शॉर्ट स्टोरी टू रिकमेंड. व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ अस. इट्स इन द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एक्सलेशन बाय टेड चैंग. टेड चैंग बाय द वे इज द गाय जिसकी स्टोरी पर अराइवल मूवी बेस्ड है. ओके, आई थिंक फ्री विल की जब भी बात होती है ना, मुझे वेस्ट वर्ल्ड याद आता है सीजन 1. हाँ, मैंने वेस्ट वर्ल्ड का सिर्फ पायलट एपिसोड देखा है, फिर मैंने पता नहीं क्यों नहीं देखा था. एक ही सीजन देखना, बाकी वैसे ही कैंसिल हो गया शो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा एक एंगल से पूछता हूँ. डू यू वांट दैट आफ्टर यू आर गॉन यू विल रिमेंबर लाइक अबाउट ये लेगेसी? अच्छा, ये चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. मैं अगेन एक और कोट है क्योंकि लाइक आई एम रियली इनटू कोट्स. फ्रैंक ज़ापा करके एक म्यूजिशियन है, मैं काफ़ी उनसे रेजोनेट करता हूँ. कॉलेज में ना मैंने उनका एक कोट लगाया हुआ था मेरी वॉल पे. मेरी इज प्लेइंग अ गिटार और साइड में लिखा है आई डोंट गिव अ फक इफ दे रिमेंबर मी एट ऑल. एंड आई रियली रिलेट विद इट. आई डोंट गिव आई मेरे को कुछ लेगेसी का नहीं है. मेरे को ये मैं जब तक हूँ मेरे को अच्छे से जीना है. आई डोंट रियली गिव अ डैम इफ दे रिमेंबर मी एट ऑल. डू यू हैव फियर ऑफ डेथ? Hey, we are going in the Lex Friedman territory. चलो मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ. हाँ, डू यू फियर कि अगर डेथ आती है तो आप लाइक अनसेटिस्फाइड हो गए, और यू थिंक यार जब तब तक जो भी किया है आई एम हैप्पी कि मैंने जो कर सका. it's also कि how you die, right? I once made a short about it कि उसमें एक डायलॉग था कि I want my death to be grand. I don't want to die by a bite of an insect. ये नहीं कि कुछ आके काट गया और आप मर गए. मतलब ऐसे कुछ है प्लानट आके टकराए अर्थ से, थोड़ा मेलंकोलिया वगैरह हो, फिर मज़ा आएगा. मैं कुछ चाहता हूँ कॉस्मिक इवेंट हो जब हम सारे साथ में मरे एंड लाइक सब ऊपर देख रहे हैं एंड वी ऑल ऑफ अस डाई एंड देन वी रियलाइज कि हाउ इनसिग्निफिकेंट वर वी एंड बस मैं बच जाऊँ बाकी सब मर जाए एंड फिर लास्ट ऑफ अस हो. नहीं बट लाइक जनरली आई थिंक इट नीड्स टू बी समथिंग वेरी कॉस्मिक. मेरे को वो ब्यूटी का एलिमेंट चाहिए उसमें. लाइक इट नीड्स टू बी वेरी सिनेमैटिक. इट कैन नॉट बी लाइक कि कुछ आके काटो और आप ऐसे. इट नीड्स टू बी ग्रैंड. ये हो जाना कि होने ही वाला हो और तभी कोई बग आके काट गया. ये भी काफ़ी अच्छा है कि आप ऐसे आके खोले हो शिट. It kind of happened in White Lotus season 3. Have you seen? I've only seen first season. Oh, season 2. I'm sorry. हाँ. Do you fear anything? Like any fears in life, anything like that? अच्छा, in general. Yeah. मेरे को कुछ साल पहले fear होता था कि जो मेरा पैशन है, what if I wake up one day and it's not there. फिर मैंने पॉल श्रेडर का एक सोफिया कपोला के साथ डिस्कशन सुना था एंड आई काइंड ऑफ क्राइड आफ्टर सीइंग इट कि इट डजंट गो अवे. कुछ था वो, मैंने कहीं उसका स्नैपशॉट भी डाला था बाद में कि मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि यार इतनी मेहनत करके खुद को डिस्कवर किया है, तो व्हाट इफ़ यू वेक अप वन डे एंड यू डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर बट लाइक इट कम्स बैक. मैंने यही देखा है कि जैसे अभी देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज डायरेक्टिंग लेसर, बट मेरे को लगा कि यार चलचित्र इतना बड़ा हो गया, मैं तो बस कंपनी चलाए जा रहा हूँ क्या. मैं तो करने तो डायरेक्शन आया था, मेरे को आता भी बहुत अच्छे से. तो फिर मैंने बीच में चलचित्र में पंगे लेने चालू किए. आई मेड दैट वीडियो व्हाट इफ वी फील्ड एज अ यूट्यूब चैनल. लाइक वी हैव फील्ड एज अ यूट्यूब चैनल एक्चुअली. It worked so well. It's like a proper cinematic 10-minute short film. How Chalchitra Talks is a failure. And मैंने कुछ सोचा था कि मेरा गोल ये है इस वीडियो से, इन लोगों को मेरे को अट्रैक्ट करना है और मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. टिक 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 सारे चेक मार्क लगे थे उस पर. इट्स जस्ट एक चेक मार्क और लगा था. मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना खतरनाक रिस्पॉन्स आ जाएगा कि लोग रो रहे हैं और ये हो रहा है. अरे भाई टेस्टिमोनियल्स लिख रहे हैं चैट में, 350 कमेंट्स हैं उस वीडियो पे एंड पीपल आर राइटिंग कि हाउ चलचित्र डिड दैट. तो मेरे को लगा फक मेरे को आता है फिल्म मेकिंग. एंड देन 2-4 चीज़ें और हुई. जैसे आजकल ब्रांड्स आते हैं मेरे पास में, बोलता हूँ मैं आपको ऐसा कुछ बना के दूंगा जो आपको कोई नहीं बना के दे सकता, बिकॉज फिल्म मेकिंग एंड एवरीथिंग मैं लाऊंगा. अभी हमने माइमी उसके साथ किया था. वैसे दे गॉट वेरी हैप्पी एंड आई एम लाइक कि यार ये तो आता है, लेट्स डू मोर ऑफ दिस. सो देयर वाज अ फेज इन लाइफ आई थिंक इन 2020 2021 देन आई वाज लाइक maybe I lost my thing for direction. I lost my mojo for direction.
But then I started directing again and I realized it never went away. It's always there with you. It's beautiful. It's a very beautiful thought to have. कि आप लाइफ में कभी कुछ सीखते हो और थोड़ी सी वापस प्रैक्टिस करोगे ना तो वो वापस आ जाता है. Do you have guilts in life? बहुत ज़्यादा यार. How do you deal with it? थेरेपी. मुझे पता लगा ही था. हाँ आपको जैसे आपने पूछा होगा आपको पता होगा कि मैं ये बोलूँगा. नो थेरेपी से ज़्यादा है जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है. तो बहुत ज़्यादा होता है कि यार क्या तब वो ना किया होता, तब ऐसा ना हुआ होता. अरे वो जो सीडी चलती है ना सोते टाइम 50 बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ योर लाइफ वो रोज़ जो एक ऐसे प्लेलिस्ट आपका दिमाग जो वो चलाता है बिफोर यू गो टू बेड. इतनी तो कोई बड़ी गिल्ट अभी तक है नहीं. ठीक है हाँ मतलब बट लाइक आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन दोज थिंग्स सो आई डोंट थिंक इट्स दैट बिग एन इशू इन माई लाइफ राइट नाउ. So, now you're doing multiple roles, right? You are a content creator, filmmaker, running a business and managing everything. Where do you find the most joy? Like It depends. all your kids, but So the greatest joy is in creating. Sahil Lavani एक चीज़ बोलता है create first, entrepreneur second. When you are creating businesses, when you are creating money, when you are creating new channels, when you are creating teams, when you are creating new concepts, I find joy there. When I'm creating movies, when I'm creating characters, when I'm creating stories, I find joy there. When I'm creating YouTube videos, I find joy there. When I'm doing long form, I find joy in there. It all boils down to the word creation. So कुछ भी create करो, चाहे पैसा हो, चाहे thoughts हो, चाहे वो creation and execution का mix है सारा. So when that is अगर वहाँ पे मोमेंटम सही है you'll find joy there. Be it entrepreneurship, be it content creation or be it filmmaking. YouTube वीडियो जस्ट पब्लिश करने से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद जो हाई आता है ना कि अब देखेंगे जो मैं कहना चाहता हूँ लोग क्या रिस्पॉन्स होगा, वो आई थिंक दैट गिव्स मी द बिगेस्ट हाई. हाँ for me it doesn't because I have more anxiety about it because अगर कोई ब्रांड वीडियो है तो you need it to rank properly, you need it to land properly and rank properly. So आपको वो बात होता है. तो मेरे को वो अगेन वो प्रोसेस में बहुत हाई मिलता है कि जैसे मेरे को ये नहीं पता आपका ये कितने लोग पॉडकास्ट देखेंगे जैसे बट अभी मज़ा आ रहा है. सो द आइडियाज़ कि तब मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, जब नहीं चलता तो डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है. बट उस रेस से मैं थोड़ा निकल गया हूँ अब कि आजकल जैसे इतने वीडियोस जाते हैं चैनल पे मेरे को पता भी नहीं होता कि मतलब इन द सेंस कि ओके अभी चला गया ठीक है, मेरे को पता है कोटी में मैसेज आ जाता है सौरभ का ये अभी पब्लिक होने वाला है ठीक है. दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस थिंग दैट वे यू आर नॉट टू अटैच टू योर क्रिएशंस. डू यू रिमेंबर 15-year-old वैभव? अगर उसको जाके बोल दिया जाए कि यार तू 2023 में एक बिजनेस रन कर रहा है, तेरा यूट्यूब चैनल है, तो व्हाट वुड हिज रिस्पॉन्स बी? मतलब कुछ तो हो गई, बिजनेस तो सभी रन करते हैं ना, मतलब ये तो पता ही था मैं ज़्यादा जॉब वॉब नहीं करूँगा. सो हैविंग योर ओन थिंग गोइंग ही विल बी इम्प्रेस्ड. हैविंग अ यूट्यूब चैनल आई एम श्योर ही विल बी इम्प्रेस्ड. मतलब कुछ कंधा तो कर नहीं रहे, बहुत ज़्यादा तमीज़ से बनाई है ये चीज़. सो I don't think that person will be regretful. That person would definitely say create more, and that is something I'll always keep track of. Would you have advice for him? Yeah, don't date that girl. ये ऐसे कूल लग रहा था तो बोल दिया था, कुछ नहीं. I don't think if I was dating someone when I was 15. 15 means 11th standard? I don't 10th, know. 11th है. Yeah. The advice is generally कि लाइफ के बारे में कुछ नहीं यार, ये मैं भी देखता हूँ ये वाले क्वेश्चंस बहुत होते हैं कि एडवाइस यू वुड गिव टू योर यंगर सेल्फ है ये. अगेन थोड़ा फिर हम फिलोसॉफिकल जोन में चले जाएंगे कि थोड़े इनर चाइल्ड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की. बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी इन द सेंस बिकॉज मैं वही कर रहा हूँ ना जो मेरे को हमेशा से करना था, तो मैं उसको इतना कुछ लोड लेने के लिए बोलूँगा नहीं. एंड मैं चाहे उसको कुछ भी बोल देता, मैं आना तो इसी मोमेंट पे था. लाइक नथिंग वुड हैव चेंज. सो इट इज़ इनकॉन्सिक्वेंशियल दैट वेज. लाइक आई वुड हैव एडवाइस फॉर अदर 15-year-olds कि आप इस चीज़ पे ध्यान दो. इसमें मतलब खुद के लिए मेरे को पता है कि मैं कुछ भी करता, आना तो यही था ना. आई वुड हैव डेटेड दैट गर्ल, आई वुड हैव डन दोज थिंग्स जो मैं एनीवे करता, एंड एवरीथिंग लाइक टर्न्स आउट टू बी नाइस सो दैट यू लैंड एट दिस मोमेंट. एनी एडवाइस फॉर अपकमिंग यूट्यूबर्स और हु आर वाचिंग कि यार एक चीज़ की मतलब लोग जो कहते नहीं है, जो बाहर से दिखता नहीं है. मेरे को लग रहा है आप कुछ बहुत स्पेसिफिक ढूंढ रहा हूँ और मैं बहुत घबरा जाता हूँ ऐसे क्वेश्चन में जब कुछ बहुत स्पेसिफिक फिर मैं अच्छा ढंग से बताता हूँ. मैंने एक यार ब्लॉग पोस्ट लिखा था चलचित्र पे कि 7 things I learned, 10 things I learned from running 3 years 4 years of चलचित्र. तो 2-4 चीज़ें हैं, बता देता हूँ. यही सारी चीज़ें मेरे को अब बताने में मज़ा आता है, इसलिए मैं पहले ज़्यादा एज गेस्ट एपिसोड नहीं करता था. थिंक ऑफ दिस इन अ वे कि इट्स लाइक अ लॉन्ग गेम. मतलब जल्दी से शूट अप करके नीचे नहीं गिरना है, उस वायरल वीडियो के पीछे मत भागो.
मेरी लाइफ की फ़िलासफ़ी है, एलिया गज़ानी एक फ़िल्म मेकर है, उनसे सीखी थी कि द रियल goal is not to survive, hell anyone can do it, the goal is to survive as yourself undiminished. So अगर आपको वैसे ही जीना है जैसे आप हो, तो देर आर अ फ्यू रूल्स जो मतलब फ्यू थिंग्स यू कैन डू, मतलब बीइंग वेरी पर्टिकुलर अबाउट लाइक मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर चैनल कि यार मैं ये करूँगा ये नहीं करूँगा. मैंने डे 1 पे डिसाइड कर लिया था मैं रिव्यूज़ नहीं करूँगा मूवीज़ के, मैंने आज तक नहीं किया. मैंने तमाशा और एवाटार 2 दो फिल्म्स को आज तक बस गाली दी है. एंड इन दोनों के अलावा आई डोंट थिंक आई एवर स्पोकन बैडली अबाउट एनी फिल्म बिकॉज आई डोंट वांट टू बी रिमेंबर्ड एज अ पर्सन और I don't want to be thought of as a person कि who kind of used to, because I am a part of the same industry. So अगर किसी की आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो आप उनको पब्लिकली डिस मत करो, प्राइवेटली बोल दो, हे यार मेरे को आपकी ये बात पसंद नहीं आई, या मत बोलो, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है. पठान चलने से सबको फ़ायदा हो रहा है. सो अगर आपको पठान पसंद नहीं है, अगर आप जाके पब्लिकली बोल रहे हो, लाइक नॉट नाइस, आप भी उसी लाइक थाली से खाना खा रहे हो. सो मेरे को वो कूल नहीं लगता. सो मैंने ये मेंटेन किया था कि आई डोंट वांट टू रिव्यू एनी एवर, एंड आई स्टिल डोंट. मैं फ्राइडे रिव्यूज़ वाला गेम नहीं खेलता, एंड आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन लाइक बीइंग एबल टू मेक थिंग्स व्हेन आई काइंड ऑफ वांटेड टू मेक देम एंड प्रमोट थिंग्स दैट आई वांटेड टू प्रमोट, बीट पीपल, बीट एप्स, बीट एनीथिंग. सो जो आपकी जो सबसे ट्रूएस्ट चीज़ है जो आप करना चाहते हो उसी पे स्टिक करो. और लाइक जो लोग कुछ भी बना रहे हो, जो भी वो ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हो, जो भी नए गाने सुन रहे हो, लाइक यू डोंट नेसेसरीली नीड टू थिंक अबाउट दैट. सेकेंड, मेक गुड वर्क एंड दे विल कम एंड फाइंड यू. It never happens. It's a very big myth. Do good work and make them find you. So become a salesman. Mark Duplass की एक बहुत अच्छी स्पीच है साउथ बाय साउथ वेस्ट की, विच इज़ कॉल्ड कैवलरी इज़ नॉट कमिंग. सो वो देखना. मेरे को एक इंग्लिश फिल्म मेकर ने बोला था वो देखने के लिए. ही इज़ समवन दैट आई रियली अप्रिशिएट. तो मैं उनसे इंटर्नशिप मांग रहा था. उन्होंने कहा तुम मेरे साथ क्या करोगे काम करके, मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ वो देख लो. आई वॉज इन 2016-2017 and I watched that video and I was like कि this is all I needed, कि cavalry won't come, आपको खुद ही cavalry बनना पड़ेगा, कोई आपको बचाने नहीं आएगा. It won't get easy and they will never come to find you. So become that salesman, become that agent for yourself, become that manager for yourself. मतलब सारी चीज़ें सीख लो इस गेम के बारे में एंड फिर गेम खेलो. टीम बना लो, always helps. नहीं तो it gets too overwhelming for one single person. Don't be in love with the idea of yourself as a creator. Try to and life का मेरा एक सबसे बड़ा जो सीख है वो है have multiple obsessions. If you just do YouTube आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा एक दिन में. Have that obsession also, but have multiple things going on in your life. कि multiple things in the sense कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखो, अलग अलग जॉनर में इंटरेस्ट रखो, स्पिरिचुअलिटी में एक लेवल पे रख सकते हो, खाना बनाने में रख सकते हो. आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए दुनिया में. जो भी होता है कि लाइफ कैसे जीते हैं शुड बी योर इंटरेस्ट. काइंड ऑफ बी नाइस टू पीपल व्हेन यू अप्रोच देम. डोंट बिकम एसहोल्स व्हेन यू डू, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल बिकम एसहोल्स विद मी. फिर मेरे को बड़ा मज़ा आता है. Like I literally have like people in my DMs go from hi to you like कि तू मेरे को रिप्लाई नहीं करेगा अगेन, लाइक बिकॉज वो चेजेबल सक्सेस वाली चीज़ की उनको दिखता है हमें से ये कि भाव खाएगा साला. यू शुडंट बिकम लाइक दैट. रीड एंड लाइक वॉच गुड थिंग्स काफ़ी हेल्प करता है. ऑलवेज हैव वन HBO शो गोइंग ऑन इन योर लाइफ. आई हैव हैड दैट सिंस 2020. इट्स द प्रॉपर ओनली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विच हैज हेल्प्ड मी बी सेन. कि जैसे एक HBO शो खत्म होता है मैं दूसरा चालू कर देता हूँ, फिर तीसरा कर देता हूँ. इन जनरल हैव वेरी गुड लॉन्ग टर्म TV shows going on in your life. और जैसे कि ख़त्म होने वाला उससे पहले एक चालू कर दो. सो कभी भी वो वॉइड नहीं आएगा आपकी लाइफ में. एंड रीड द बुक कॉल्ड स्कूल ऑफ लाइफ. उससे आपके आधे फंडे लाइफ के क्लियर हो जाएंगे कि करते क्या है. मतलब हमें स्कूल में ही चीज़ें सिखाई नहीं जाती. सांस कैसे लेते हैं, ईगो के साथ कैसे हैंडल करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, जेलेसी के साथ कैसे डील करते हैं, यूट्यूब चैनल कैसे रन करते हैं. कोई जब आपको छोटा फील कराता है तो क्या करते हैं, वल्नरेबल कैसे होते हैं, मेंटल हेल्थ क्या होती है, सेक्स क्या होता है. 50 चीज़ें हैं स्कूल ऑफ लाइफ में. इनर चाइल्ड ट्रामा, ऑल दोज थिंग्स दैट एवरीवन शुड think about and know about, and knowing from the best is important. So yeah, given to those multiple obsessions, जैसे मेरा एक बहुत बड़ा obsession है sci-fi. I make it a point every time I get time to read one good sci-fi book. जैसे currently भी I am reading a book called Children of Time. It's a very good trilogy. So मैं अभी उसकी book 1 पे हूँ. So I am reading that. So have like those things going on. जैसे एक Jay Leno करके एक वो है
यूट्यूब लेट नाइट टॉक शो होस्ट था, तो मैंने लुई सी के जो रोगन के पॉडकास्ट में सुना था कि जे लेनो इज़ वेरी मच इनटू कार्स। सो उसका एक गैराज है जहाँ पे उसके पास उसने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, फिर उनको जलाता है, तोड़ता है, कुछ करता है। सो आपकी ना इससे पर्सनालिटी हॉलिस्टिक हो जाती है। अगर सिर्फ यूट्यूबर भी हो तो सिर्फ एक ही चीज़ मत करो, 50-60 चीज़ें आनी चाहिए कि सामने वाले को बैठ के आपसे बात करने में मज़ा आए कि हाँ भाई यार इसको कितना पता है। जैसे कुल्लू ने हमारे एपिसोड में चीज़ बोली थी कि आप जहाँ से हो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी हॉलिस्टिक होती है ना, पीपल वुड वांट टू टॉक टू यू मोर। सो दिस इज़ द अल्टीमेट रूल ऑफ लाइक लिविंग लाइफ, सेडक्शन, अप्रोचिंग पीपल की 50 चीज़ों के बारे में बताओ। अगर आपको सिर्फ पता है कि स्टैनली क्यूब्रिक ने क्या बनाया है, तारकोस्की ने क्या बनाया है, और आपको कुछ और नहीं पता है लाइफ के बारे में, देन एक टाइम के बाद इट वोंट बी एज फन। इट इज़ ग्रेट, एक कांस्टेंट चीज़ होनी चाहिए जो बहुत बड़ा ऑब्सेशन हो, बट हैव मल्टीपल थिंग्स लाइक दैट। व्हाट इफ आपको पल्सेस के बारे में इतना पता हो कि दुनिया में कितनी दालें होती है जितना आपको क्यूब्रिक की पिक्चरों के बारे में पता है। व्हाट इफ आपको काइट फ्लाइंग के बारे में उतना पता हो। व्हाट इफ आपको एनिमल्स के बारे में उतना पता हो। एंड हैविंग तो ना आपकी एक बड़ी सर्कुलर ग्रोथ होती है, एंड दैट इज समथिंग आई एम ऑल्सो वर्किंग एट लाइक एट दिस डे एंड एज। और इसलिए मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है, एंड दैट्स प्रिटी मच इट। That was great. That was great. So मिल गया ना आपको खतरनाक तगड़ा एपिसोड मिल गया आपको। हाँ वैसे अरे ये यार रील यहाँ रील है, यहाँ रील है। नहीं यार लॉन्ग फॉर्म अच्छे से करो। रील तो यार मेरे को बड़ी खुन्नस है रील्स के कॉन्सेप्ट से। हम खुद बनाते हैं बट इट्स जस्ट मुझसे तो नहीं होता बहुत ज़्यादा. But when I messaged you, I said I need wisdom, and I think You I need got to? that. I need wisdom, and I think I got pretty much of that throughout this discussion. So thank you for that. It was great listening to you. I hope you had a good time, and I hope people watching this, really get what they're looking for. But sometimes they don't even know what they don't know, and I hope this helps them in some way or form. नाइस। So thanks for that. So guys, that was it. I hope you enjoyed this. If you did, hit that like button. You can check out this video next to watch, and I'll see you next time.